Good morning, students. Welcome back to your English class. I hope you all are fine and doing well. From today onwards, students, we have to start with our poetry session. My Mother at 66 is the first poetry of your syllabus. So, let us study and discuss about the poetry My Mother at 66 written by Kamla Das. My Mother at 66. This poetry is written by the great, prolific Indian writer Kamla Das. The poet Kamla Das also wrote by her pen name of Madhavi Kuti. In lifetime, she wrote both in English and Malayalam. She was born in 1934 in Malabar, Kerala, and she died at 75 in the year 2009. Now, students, first let me read you about this beautiful poetry written by Kamla Das. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her when, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And I did was smile and smile and smile. After this reading this poetry, students, what have you judged about it? Let me explain you. It is very true, students. A woman has to play a several role in society. A daughter, a mother, a wife, and a sister. But the role of a daughter is the most complex roles she has to play. And now we have a very touchy and a beautiful poem regarding the relationship of a daughter and a mother. In this poetry, the feelings of daughter has been explained here towards her mother. And if we ask about the theme of the poetry, students, here I'm going to explain you about the two aspects which are very important regarding my mother at 66. First one, it touches, please students beta, सिर्फ you need not have to listen only. कुछ इस पोइट्री में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज यू जस्ट राइट समवेयर एल्स, राइट इन योर नोटबुक, राइट इन योर नोट्स. So when you just go through this poetry, when you read this poetry, just you may relate that particular poetic device, meaning, or the meaning of the line. First, it touches the aging and complex human relationships. Second one, it explains that time and age spare none and both are inevitable. Means these are universal aspects.
and it happens to everyone who comes to this world. So students, I have read this poetry for you, and when you read this poetry, what do you judge about this poetry? See, this poetry has not been explained in the form of the paragraphs. First important thing. What do you judge about this poetry? Second thing is that, students, there are no rhyming schemes here. पैराग्राफ नहीं है प्रॉपर, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. तो दिस पोएट्री इज रिटन इन फ्री ब्लैंक वर्ड्स. याद रखिएगा बेटा, फ्री ब्लैंक वर्ड्स मीन्स जिस पोएट्री में कोई लाइन में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. आप रिलेट करते ना ए बी बी सी या ए बी सी ए. सो यहाँ पे दिस पोएट्री इज रिटन इन फ्री ब्लैंक वर्ड्स. And what have you observed here, students? It is indeed written in long sentences without any full stop. यहाँ देखिए, बस लास्ट में स्माइल एंड स्माइल जहाँ रिपीट हो रहा है वहीं पे आई मीन जस्ट कंसिडर इट इज अ फुल स्टॉप. लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया है. अदरवाइज पूरी पोइट्री में यहाँ देख लो, ये एक्चुअली आप क्या बोलोगे बेटा, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं कमला दास ने, एज द थॉट्स एज कम्स टू हर in her mind. We can say that in fact it ends in ellipsis. That means the poet narrates one thought after the another when it comes to in her mind. Now let us start with the poetry. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. तो यहाँ पर अपनी जो पोइटेस है, शी इज सेइंग दैट शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम एंड शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स टू कोचिन एयरपोर्ट. और कब की बात है ये? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. सो व्हेन शी वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, इन फैक्ट हर मदर वॉज विद हर. उसकी मदर उसके साथ हैं. उसकी मदर सीट पे बिसाइड. स्टूडेंट्स लुक हियर, when you go through the prepositions, एक होता है beside, एक besides. जो besides है BESIDES means उसके अलावा, in addition to meaning होता है. and this beside means to the side of. Okay, so now when she was moving towards the airport, she here her mother, she's accompanied her, she was sitting beside her. And now see, in these lines जो मैं आगे पढ़ रही हूँ, यहाँ पे जो पोएटिस ने है बड़े ही आई मीन बड़े ही डीपली उसने अपनी मदर के फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, कि हाउ हर मदर लुक्स. एज हर मदर शी हैज बिकम ओल्ड इनफ. शी इज एन ओल्ड लेडी ऑफ 66. So while driving towards the Cochin airport, her mother, she was sitting beside her, and even she's looking towards her mother. And now let's see what she thinks and what physical appearance and the feelings she comes across when she looks at her old mother. देखिए, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Now students, one by one, let me tell you the meaning of these words. First, see the word doze here. Doze means nap, a short sleep, or you can say that dull or half asleep due to her old age. Open mouth means she was in a nap. उसका जो मतलब माउथ है वो खुला हुआ है उसकी मदर का. Her face ashen. Underline the word ashen here. ये जो ashen word है यूज किया गया उसका फेस, कि उसका फेस कैसा लग रहा था. वैसे तो हम ऐश बोलते हैं ना, राख ऐश होती है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐश मीन्स द डल और द पेल फेस ऑफ हर मदर.
मीन्स फिर से देखो, व्हाट वाज शी लुक्ड, कि शी जस्ट लुक्ड एट हर मदर, और ये फीलिंग्स उसके मन में आ रहे हैं दैट शी इज डोज, शी वॉज टिकनैप, हर माउथ वॉज ओपन, एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो यहाँ पर उसने अपनी जो बूढ़ी मदर है उसको किससे कंपेयर किया स्टूडेंट्स? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मीन्स द डेड बॉडी। लाइक कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे यूज हुआ है बेटा सिमिली, लिख लीजिए। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कि यहाँ पर जो उसकी पेल फेडेड जो ओल्ड मदर है, ओपन माउथ है, हियर she has been compared her mother with a dead body. Means she's shocked to see how old and pale, grave her mother looks. Indeed, her mother almost looks if she is like a dead corpse. लिख लो बेटा, क्या बोला मैंने? That indeed, her mother almost looks if she is like a dead corpse. Now, corpse means the dead body. And that suddenly shakes the poet. और वो क्या रियलाइज करती है? What she is realizing here? That means that she was as old as she looked. That means that she was as old she looked. मतलब वो जितनी दिख रही है उतनी बूढ़ी है। मतलब यहाँ पर that she is an old lady of 66 years. And यहाँ पे पोएट बोल रही हैं, she realizes her mother is no longer now a young lady. In fact, she has become old woman of 66. So what does the poet do? She does not dwell in that constantly. She shudders, maybe, and she wants to put these thoughts away. Soon put that thought away. अब यहाँ पर बेटा thought away, किस thought की बात हो रही है? Because when she is sitting in a car, she is thinking about her mother. She looked at her mother. Old age है, she was DOS, and even she was just looking like a dead body. मीन्स यहाँ पर उसके जो वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं कि उनको देख के जो पोएटस है बहुत ही शैटर हो गई है, एंड शी इज़ बिकमिंग सैड. एंड इन फैक्ट शी डजंट पुट दैट थॉट अवे. मतलब वो अपने इस विचारों को मतलब शी हैज़ गिवन टू अदर वे राउंड. मतलब पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. अब सुनो बेटा, वो यहाँ से वो अपने विचार खत्म करती है. बिकॉज यहाँ पर पोएटेस ने ये लाइन यूज के विचार खत्म करते, बिकॉज शी डजंट वांट टू रियलाइज टू हर मदर दैट व्हाट शी इज थिंकिंग अबाउट हर. शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज हर फीलिंग्स टू हर मदर रिगार्डिंग हर एज और रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप की, मतलब वेदर कि शायद दोबारा मैं आऊँगी जब पता नहीं मुझे मेरी मदर मिलेंगी या नहीं. तो इनफैक्ट यहाँ पे कहने का मतलब है खुद भी दुखी होना और मदर को भी परेशान करना. सो ये जो फीलिंग्स है, ये थॉट है रिगार्डिंग हर मदर. शी जस्ट वॉन्ट्स टू कीप टू हर सेल्फ एंड जस्ट डजंट वॉन्ट टू शो टू हर मदर. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो मीन्स देर इज अ वे टू चेंज हर थॉट. उसने अपने विचार चेंज किए. एंड नाउ लुक स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Looked out at young trees sprinting. Ab now look, the car is moving towards the Cochin airport. आपने भी देखा है जब भी आप ट्रेवल करते हो इन अ कार, बस और इन अ ट्रेन, एक्चुअली स्पीडली आगे की तरफ चल रही है और वहाँ पे जो भी ट्रीज है, जो भी पेड़ है, आते हैं, एक्चुअली इन व्हाट डायरेक्शन डू दे मूव? ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऐसा लग रहा है कि वो फटाफट कि देखो ये जो पेड़ हैं बड़ी तेजी से गति से मतलब दौड़ के आ रहे हैं हमारी तरफ. इट सीम्स ना. तो वैसे ही when the poetess, when she looked out of the window, and what did she notice? अगर क्वेश्चन आपका ये भी आ जाए स्टूडेंट्स कि एक्चुअली when she wants to change her thought, what did she look out of the window? सो यहाँ पर ये बेटा यहाँ पे बोलेंगे these are the images. जैसा पोएटिक डिवाइस जो मैंने आपको कराए थे ना कि यहाँ पे इमेजेस शो किए गए हैं, इमेजरी.
और क्या इमेजेस हैं? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, फटाफट ट्रीज का आगे की तरफ दौड़ना। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और यहाँ पे सेकेंड इमेज क्या शो की गई है? जब वो बाहर देखती हैं बच्चे जो है बड़ी खुशी से, मतलब स्पिलिंग मूविंग आउट। मैं एक्सप्लेन करी फिर से सुनो। एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, दिस इज द पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स लिख लो बेटा, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रीज को दौड़ा दिया, राइट क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रीज को लिविंग की कैटस्कैच दी थी है कि हम दौड़ा रहे हैं। भाई देखो पेड़ कितना तेज दौड़ रहा है, दैट मीन्स पेड़ दौड़ता नहीं है ना, पेड़ एक जगह ही रहता है ना। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। और भी स्टूडेंट्स लिखिए आप, ये पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, और हमको ये क्या सिम्बोलाइज कर रहा है? व्हाट डज इट सिम्बोलाइजेस अस? स्प्रिंटिंग ट्रीज इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड विटिलिटी। सेकेंड है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यहाँ पर हैप्पीनेस, कि जो बच्चे जो है बड़ी खुशी से दौड़ रहे हैं, मतलब दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से दौड़ रहे हैं। भाई कैसे भी दौड़ सकते हो, अपने स्कूल जाने के लिए दौड़ रहे हैं या वो खेल रहे हैं, दे वे प्लेइंग। और यहाँ पर जो है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, दिस इज अ मेटाफर यूज्ड हियर। स्पेलिंग मीन्स मूविंग फास्ट out of their homes. So these are the imagery the poetess has used here. अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जब चीज़ों को देखती है पोइटस, ट्रीज का स्प्रिंट कर रहे हैं बच्चे, बड़ी खुशी से बड़े जोश से घर से निकल रहे हैं। एंड व्हाट दिस सिंबल, ट्रीज स्प्रिंटिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दे आर द सिंबल ऑफ एनर्जी, वाइटलिटी, ग्रोथ। एंड व्हाट डज द मैरी चिल्ड्रन, ये क्या सिम्बोलाइज कर रहे हैं? आई मीन यहाँ पर अगर आप लिटरली टर्म्स से देखो, व्हाट डज इट सिम्बोलाइज? इट सिम्बोलाइजेस चेस्ट, चील, enthusiasm and vitality. प्लीज बेटा लिख लीजिए। आउट ऑफ देयर होम्स। सो अब एक और सुनो बेटा, और एक यहाँ पे फिगरेटिव स्पीच यहाँ पर यूज किया गया। हम फिगरेटिव स्पीच किस लिए यूज कर रहे हैं? वी यूज दीज फिगरेटिव स्पीचेस टू मेक आर पोइट्री, टू मेक आर लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल, और अच्छे से ब्यूटीफुल बनाएं और इम्प्रेसिव करें। इसलिए हम ये लिटरली टर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? ऑपोजिट होता है ना। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्ट हियर? देखो बेटा, अब मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या बोला था कि जब व्हेन शी वाज सिटिंग इन द कार, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। तो वहां पे जब वो कार में बैठी है, when she is sitting there, तो what does it feel? Dullness. So she notices her face, mother's face was pale compared with the dead body. एंड यहां पर कॉन्ट्रास्ट है ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ। जब वो कार में बैठी तो लाइफ बड़ी डल सी दिख रही, शी लुक्ड एट हर मदर, जो कि वो ओल्ड पर्सन है, जो ओल्ड साइंस शो कर रहे हैं, डेड बॉय से कंपेयर किया गया है। और कंट्रास्ट में जब वो बाहर देखती हैं, सो बाहर जब वो देख रही, व्हाट शी लुक्स एट द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ट्री स्प्रिंटिंग। सो दिस ओल्ड अगेंस्ट एज अगेंस्ट यूथ, लिख लो बेटा, क्या कॉन्ट्रास्ट है? ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ, because her old mother signifies, again what does signifies? The dullness, the pale. Her mother signifies old age, death and decay. She is extremely pale and colorless. Understood contrast here? But after the airport security check, now they reach to the airport, and there they need to just fulfill certain formalities over there. Standing a few yards away, I looked again at her wan face. See students, after just fulfilling certain formalities over there, she again looked at her mother. So what her thoughts when she again looked at her mother? At her wan pale,
वैन मीन्स क्या होता है बेटा? कलरलेस, फेडेड, पेल फिश शी लुक्ड as a late winter's moon. Underline this. This line is very important, students. और बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई, as a late winter's moon. अगर आप सिंपली हिंदी में बोल गए लेट विंटर्स मून, क्या होता है स्टूडेंट्स? कि मतलब जहाँ पर ये ठंड के टाइम बड़ा ही, जब आप देखते हो ना मून को देखते हो, बड़ा कैसा कैसा लगता है आपको व्हेन यू जस्ट लुक एट मून ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम? कि बड़ा ही थोड़ा सा लश लगता है, आई मीन थोड़ा डिम डिम सा लगता है, शाइनी नहीं होता, और थोड़ा सा धुंधला धुंधला आप लोगों को दिखता है। क्लियर? सो वैसे ही यहाँ पे पोइटेस ने अपनी मदर को कंपेयर किया है एज अ लेट विंटर्स मून। अब नाउ स्टूडेंट्स, मीन्स हर मदर सिग्निफाइज, लेट विंटर्स मून लिख लो बेटा, क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे जो लेट विंटर्स मून है? डीके, सिंबल ऑफ डीके है, सिंबल ऑफ डेथ है, और यू कैन से दैट सिग्निफाइज ओल्ड एज। देखो मैंने क्या क्या बेटा मैंने लिखे, प्लीज आप लिख लीजिएगा इनको, क्योंकि दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने अच्छे से आपके पास वर्ड्स होंगे आप उस लाइन को और उस आंसर को उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, डीके, सिंबल ऑफ डीके है, डेथ है, ओल्ड एज, और शी इज एक्सट्रीमली पेल एंड कलरलेस। एंड सेकेंड, एंड फेल्ट लेट विंटर्स मून, और यहां पे ये भी लिख सकते हो बेटा लेट विंटर्स मून, इट इज अ सिंबल ऑफ अप्रोचिंग डेथ। मतलब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है कि भाई उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, कि वो कभी भी मर सकती है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, राइट? सो व्हेन यू जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस, यू कैन एक्सप्लेन दिस लाइन एज, मैं एक और तरीके से आपको बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज लिसन अटेंटिवली, कि जो मदर फेस कंपेयर किया गया टू द लेट विंटर्स मून, आप ऐसे भी लिख सकते हो बोथ आर डल एंड लाइफलेस। मैंने आपको कितने वर्ड्स बताए बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आप अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है उसमें अगर आप 2 या 3 वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करोगे विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून मीन्स बोथ आर डल एंड लाइफलेस। द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू a late winter's moon as the moon in winters is not shiny। ये सबको पता है कि जब विंटर्स आते हैं तो शाम को जब आप क्या देखते हो, जब आपको देखते हो ना, क्या देखते हो शाम को, कि आपने अगर देखा है तो मतलब बहुत ही धुंधला दिखता है जब आप चांद देखते हो, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट शाइनी। एंड इवन हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। प्लीज अंडरलाइन कर लो, शी हैड लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन as her mother was getting older and weak। Understood? अब आगे चले। That the familiar ache होता है पेन, my childhood fear। अब यहाँ देखो बेटा, अगर देखा जाए तो कौन सी चाइल्डहुड फियर की बात हो रही है? या ये कह सकते हो कि जब जो अपनी जो पोइटेस है जब यंग एज ही हो सकता है, यंग एज में वो अपनी मदर से सेपरेट हो गई थी, ये कह सकते हो? या आप इसमें ये देखिए, क्योंकि एवरीवन हैज़ दैट फियर, वो है फियर ऑफ सेपरेशन, वो है फियर ऑफ डेथ। क्योंकि हम लोग भी हैं कि जब आप देखोगे जैसे आप बड़े होगे, क्योंकि एजिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन एंड इट कम्स टू एवरीवन। आप जैसे पोइटस देख रही हैं कि जो उसकी जो मदर है, उसकी मदर जो है बहुत ही ज़्यादा आई मीन बूढ़ी हो गई हैं, अब उनको मन में रह रह के यही सता रहा है, यही पेन उसको सता रहा है कि अगर मैं दोबारा आऊँगी क्या मुझे मेरी मदर मिलेंगी? वो चाइल्डहुड फियर, स्टिल देयर चाइल्डहुड फियर जस्ट लिंगरिंग इन हर। और ये कह सकते हो, यहाँ पे पोइटस बोल रही हैं शी डजंट नो वेदर दैट मीन्स शी वुड सी हर मदर अगेन व्हेन शी वुड रिटर्न बैक। और यहाँ पर है मतलब एक वही है, पेन वही है, चाइल्डहुड फियर, दैट मीन्स द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा।
अब यहाँ पर देखो बेटा कि व्हाट द पोएटेस वाज थिंकिंग अबाउट हर मदर, कि पोएटेस अपनी मदर के बारे में क्या सोच रही है, कि हाँ उसकी फीलिंग। लेकिन देखो पोएटेस एज शी इज अ डॉटर शी हैज़ टू गो, शी हैज़ सर्टेन कमिटमेंट्स इन हर लाइफ, शी कांट स्टे विद हर मदर। अब हम लोग भी हैं अपनी मदर से बहुत दूर हैं। अब इस एजिंग प्रोसेस में हम भी ये सोचते हैं कि पता नहीं जब अगले साल हम अपनी मदर से मिलने जाएंगे तो पता नहीं हमें हमारी मदर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये जो फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ डेथ है, ये बचपन से लेखिका के मन में है, बचपन से ही पोएट्स के मन में है। और इनफैक्ट दिस इज रियलिटी, अनसर्टेनिटी हैपेंस टू एवरीवन। और यही डर, यही फियर हम लोगों के मन में भी है, क्योंकि देखो पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत एजड हो गए हैं, पता नहीं फिर से जाएंगे तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो दिस इमोशनल जो है, आई मीन थिंग्स हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, यू कहना कि इट इज़ इनएविटेबल। सो सी ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, बड़े ही अच्छे वर्ड्स में, पार्टिंग वर्ड्स बोले सी यू सून अम्मा, कि यहाँ पर जो है पोएटस ने मतलब कुछ नहीं कहा मदर से। अब वो व्हाट शी इज़ थिंकिंग, उसका क्या पेन है, क्या अगनी है, व्हाट शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर मदर, शी डजंट एनीवन सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे, फिर आऊँगी तब मिलूँगी मैं आपसे अम्मा। शी डजंट नो वेदर शी वुड बी देयर व्हेन आई मीन्स द पोएट्स रिटर्न बैक, क्या मैं दोबारा आऊँगी तो क्या मुझे मेरी मदर मिलेंगी। शी माइट बी डेड, सो इन ऑर्डर टू ensure her mother she tells see you soon amma, प्लीज़ बेटा लिख लो, in order to ensure her mother, अपनी मदर को इंश्योर करती हैं। और क्या इंश्योर करती हैं? दैट शी विल सी हर अगेन, सी यू सून अम्मा। और हमें पता है दैट दिस इज एन अनइमोशनल काइंड ऑफ पार्टिंग वर्ड्स, बिकॉज शी नोज her mother has become quite old, a woman of 66। और यहाँ पर जो है बेटा अनइमोशनल, जो मैंने आपको भी बताया है क्या है इसके अंदर, अन इमोशनल काइंड ऑफ पार्टिंग वर्ड्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो पोएटेस है, अब इसने आपने कुछ भी शी डिडंट मेंशन अबाउट हर फीलिंग्स, अबाउट हर tears, about her ache, pain, agony। और आपको लगता नहीं कि बहुत ही फॉर्मल पार्टिंग है, कि मतलब कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं ना, भाई चलो हम तो परेशान हैं, हमने अपनी मदर को क्यों परेशान किया। अब सिर्फ ये जो एजिंग फिनोमेनन सिर्फ एक उसकी मदर के लिए नहीं है कि उसकी मदर ही बहुत बूढ़ी हो गई है, साथ ही साथ जो पोएटेस है वो भी धीरे धीरे अपनी एज के अकॉर्डिंग कवर कर रही है अपना टाइम। तो बूढ़े तो सभी होंगे, और ये चीज़ें जो पोएटेस ने हैं अपनी मदर को रिवील नहीं की। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखो, पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन। क्या बोला? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ ये बोलेंगे हम, जो पोएटेस ने, शी हाइड हर फीलिंग्स व्हेन इन फैक्ट शी सैड बट स्टिल शी हाइड हर फीलिंग्स, शी हाइड हर ट्रू फीलिंग्स and she wants to ensure her mother that she would meet her again। और हम ये कह सकते हैं the agony of separation is brought forward in this poem very explicitly। So at last these are the repetition। She repeated these words to emphasize the poet that she is helpless in the situation। और ये देखो बेटा यहाँ पर जो स्माइल स्माइल है ना, वो बोल ही नहीं रही है, वो मन स्माइल भी, ये पार्टिंग वर्ड्स, उसने स्माइल किया अपनी मदर को, स्माइल एंड स्माइल। इज हियर इज मोर क्वाइट होलो है, ये उसकी जो स्माइल है बेटा ये होलो है, एक आर्टिफिशियल स्माइल है ये। इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स।
कि यहाँ पर जो है कि जो मतलब यू नो कि व्हाट द डॉटर शी थिंक्स अबाउट। और एक जो डॉटर के मन में अपनी मदर के लिए जो फीलिंग्स होती हैं शायद वो किसी के मन में होंगी। आई डोंट वांट टू से दैट कि बॉयज़ के मन में फीलिंग्स नहीं होती हैं, पर यू नो स्टूडेंट्स, नो वन कैन बीट अ डॉटर एंड दिस इज ट्रू। So please remember, aging is a natural, it is irreversible process, and even it is inevitable process. And one more line बेटा लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लीजिए प्लीज़। जो ये पोइट्री हमें व्हाट द पोइट्री टीचर्स आर, जो पोइट्री हमें बता रहा है, जो पोइट्री हमने पढ़ी है, उसमें हम क्या मतलब क्या उसका मतलब थीम निकालेंगे। एजिंग एंड यूथ आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, this is the explanation of the poetry My Mother at 66. Now you can see that, think it out. There are certain questions given here, so let me discuss these questions with you. और मैं आपको यहाँ पे आपको वैल्यू पॉइंट्स दे देती हूँ, so that I would try my best you would not feel any problem while doing these answers. And in fact, if you face any problem, please do inform me, call me or comment. The first one is, what is the kind of pain and ache that the poet feels here? You just can write down family ache or poet childhood का यही था. That means the separation from her mother or the death of her mother. A sentence में अगर आपने express करना है, the poetess feels pain or seeing the pale and corpse-like face of her mother. These appears her old familiar pain of childhood in her heart. She realizes that her mother's face has become like the withered moon of the winter season. And she feels that time and age spare none and both are inevitable. इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं, आप वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो. What are the young trees described as sprinting? यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि भाई यहाँ पे जो ये इमेजेस यूज़ की गई हैं ये क्या सिम्बोलाइज करती हैं आपको. Young trees are sprinting, क्या? Because the poetess is in a car on her way home to the Cochin airport. She looks outside and feels the young trees seem to be walking past him. With the car, they seem to be sprinting. जो poetess है gives a comparison of contrast of a dozing mother with those of young trees running and full of life. And these described as sprinting, आप कह सकते हो symbol of growth, energy and vitality. Next question. Why has the poet brought in the images of the merry children spilling out? The poetess talk of various stages of life. On one side, there are merry children play and enjoy in the sun. They represent, जो अब मैंने आपको बताया था, life, vigor, continuity, power, action, and carefree life. और यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रास्ट है बेटा. हाँ, ये कि क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, लेकिन मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया ये पूरी एक ही लाइन थी ना, ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. और दूसरे में आप क्या लिखोगे, द कॉन्टिन्यूटी इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एज वेल एज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Why she has compared with the late winter's moon? The late winter's moon is calm, hazy. और मैंने आपको क्या बताया था
कैसा होता है? नॉट शाइनी, लॉस इज लस्टर। ये मैं कॉमा कॉमा करके बता रही हूँ आपको, आप कोई भी दो तीन वर्ड लिख सकते हो, एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसमें। काम एंड हीजी विद डिम लस्टर, it loses its vitality and power. So the poetess compares her mother's calm, colorless, and withered face like the late winter's moon. She has become weak, wan, and pale due to her age of 66. Even she lost her vitality and youth. Now look at the last question of this. What do the parting words of the poet and her smile signifies? What does it signify? These words signify some sort of hope. It shows some promise as well as expectation. आप इसमें कह सकते हो एक hope है, एक promise है, as well as she's expecting that she would see her mother again. ये लाइन हम ये मतलब signify करती है. She might find her alive, so she scatters a smile on her face to pay her mother her last tribute. On the other hand, she is troubled at heart to leave her mother alone. So, students, this is all about the poetry. Along with this, I'll give you just attached PDF, because in the exam you will get the पोइट्री स्टेंजास, और उस पोइट्री के स्टेंजा में आपको कुछ भी पूछ लेंगे, कोई पोइटिक डिवाइस पूछ लेंगे, वर्ड का मीनिंग, कोई किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ लेंगे, और लाइन के एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द पोएटिस of this poetry. So students, this is all about this poetry, and I hope you all like it. Thank you very much and have a nice day.